Eigen, that means we can say characteristic values or characteristic vectors. इस वर्ड को लेटेंट भी बोल सकते हैं और लेटेंट. लेटेंट का मतलब क्या हुआ? फिजिक्स में पढ़ते हुए कभी लेटेंट हीट पढ़ा था? लेटेंट का मतलब क्या हुआ? छिपा हुआ. तो कोई छिपा हुआ बिहेवियर, कोई छिपा हुआ करेक्टर जो कि किसी पर्टिकुलर मैट्रिक्स के करेक्टर को डिफाइन करे, उसे हम लोग क्या बोल रहे हैं? आइगन वैल्यू. ठीक है. सो आई डिफाइन दैट लैम्डा, दिस इज बिलोंग्स टू सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स. This is an eigenvalue of a square matrix capital A equal to Aij n cross n if there exists a non-zero vector x, if there exists a non-zero vector x such that Ax equal to lambda times x. हमने मल्टीप्लाई किया किसका? मैट्रिक्स के साथ में नॉन जीरो वेक्टर का. बात समझना, लैम्डा भी कैसा नंबर है बेटा? कॉम्प्लेक्स नंबर है. तो इस नॉन जीरो वेक्टर x के साथ में दिस लैम्डा डिफाइंस द कैरेक्टर ऑफ दैट मैट्रिक्स कैपिटल A. इन दिस सिचुएशन वी कैन से दिस इज कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू और आइगन वैल्यू और लेटेंट वैल्यू ऑफ दैट मैट्रिक्स. दिस नॉन जीरो वेक्टर x इज डिफाइंड एज आइगन वेक्टर corresponding to that lambda eigenvalue. Is it clear or not? And that equation Ax equal to lambda x. This equation implies A minus lambda into identity, this into x equal to 0. Is it clear or not? A minus lambda into identity, this into x equal to 0. ये equation कैसी है? कुछ याद आया? पीछे पढ़ा था हमने homogeneous system of equations. This is homogeneous system of equations. किस किस टाइप का सॉल्यूशन होता था होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के पास में? एक यूनिक सॉल्यूशन और दूसरा इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन. सॉल्यूशन हमेशा एग्जिस्ट करता था ना? करता था. तो हमने यूनिक सॉल्यूशन बोला था. सॉल्यूशन कैसा था? जीरो, ट्राइवल सॉल्यूशन. लेकिन कैसा सॉल्यूशन यहाँ पे आप मान रहे हो? नॉन जीरो. नॉन जीरो सॉल्यूशन कब मिलेगा किसी होमोजेनियस सिस्टम का? जब वो इन्फिनिटली मेनी हो. इन्फिनिटली मेनी कब होगा? जब कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक लेस देन बाई n हो. वो लेस देन बाई n क्यों बोलते थे? आपको याद होगा, हम बोलते नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल कम से कम एक होगा. उस केस में क्या बोलोगे? इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस मिलेंगे. मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहाँ जो सिस्टम मिल रहा है, दिस इज a माइनस लैम्डा इंटू आइडेंटिटी, दिस इंटू एक्स इक्वल टू 0. Because this x is non-zero vector, that means this system has non-zero solution or non-trivial solution. We can say this condition implies that the rank of the matrix, coefficient matrix, a minus lambda into identity, this is less than by the number of variables. Clear or not? This is less than by the number of variables. Rank is less than by n, that means determinant of the matrix is equal to 0. Is it clear or not? And this condition implies determinant of a minus lambda into identity, this is equal to 0. Is it clear or not? This equation is defined as characteristic equation of this square matrix capital A. Clear or not? This is characteristic equation of the matrix capital A. कोई डाउट यहाँ पे? समझ में आ रहा है सबको? So I define a square matrix capital A which is of order n cross n. Then lambda, which is a complex number. ठीक है, this is an eigenvalue of this square matrix. If there exists a non-zero vector capital X, which is eigenvector corresponding to that eigenvalue, if it satisfies the condition Ax equal to lambda x, which implies that a minus lambda into identity, this into x equal to 0, which is homogeneous system of equation. It can have two types of solution, either unique or infinitely many. But unique solution is always trivial, that means 0. But their solution is non-zero, that means the solutions of these systems are infinitely many. That means we can say the rank should be less than by n. That means the order of that matrix. If rank is less than by n, in this situation we can say determinant is equal to 0. And now this equation is characteristic equation of that matrix. तो ये x कितने होंगे हमारे पास जो कि नॉन जीरो है? इन्फिनिटली मैनी. कितने सॉल्यूशन होंगे सिस्टम के? इन्फिनिटली मैनी. तो एक आइगन वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग कितने आइगन वेक्टर्स होते हैं? इन्फिनिटली मैनी. आप कभी नहीं बोलोगे दो आइगन वेक्टर्स हैं, तीन आइगन वेक्टर्स हैं. कितने आइगन वेक्टर्स होते हैं? इन्फिनिटली मैनी. बात समझ में आ रही है? तो मैंने कहा कॉरेस्पॉन्डिंग टू एन आइगन वैल्यू,
corresponding to n eigenvalue, we get infinitely many eigenvectors. And collection of them we can define, this is eigenspace for lambda. इन सारे eigenvectors का collection हम लोग कैसे define कर रहे हैं? This is eigenspace for lambda eigenvalue. Clear or not? And collection of them is eigenspace for eigenvalue lambda. For eigenvalue lambda. कोई डाउट यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको? So I define corresponding to n eigenvalue, we get infinitely many eigenvectors. Clear or not? And collection of these eigenvectors, this is eigenspace for eigenvalue lambda. Clear or not? अब जो हमने characteristic define equation define की, इसको हम कुछ particular matrices के लिए define कर सकते हैं. समझना, अगर मैं matrix लेता हूँ characteristic equations, for a matrix which is of order 2 cross 2, Aij 2 cross 2, when you define the determinant of A minus lambda into identity, this is equal to 0. क्या बन जाएगा बेटा? A11 minus lambda, A12, A21, A22 minus lambda, and this determinant is equal to 0. Determinant निकालें तो कितना बनेगा equation? This is lambda square minus A11 plus A22, this into lambda, plus A11 A22 minus A12 A21, this is equal to 0. अगर मैं इस डिटर्मिनेंट को जनरलाइज करता हूँ तो मुझे इक्वेशन मिल रही है. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट, आप जानते हो ट्रेस, दैट मीन्स सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज इन अ मैट्रिक्स. आई डिफाइन दैट टर्म, दिस इज ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स. Trace of the matrix, this is equal to चूंकि मैट्रिक्स हमेशा कैसी होनी चाहिए? स्क्वायर होनी चाहिए, तभी जाके ट्रेस एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डायगोनल एग्जिस्ट करता है. इतना सब लोग जान रहे हो. सो आई डिफाइन ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स कैपिटल A, दिस इज इक्वल टू सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज of the matrix capital A. Is it clear or not? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? So trace of the matrix capital A is sum of diagonal entries of the matrix capital A. ये इक्वेशन आप देखना, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन किस फॉर्म में डिफाइंड है? लैम्डा स्क्वायर माइनस क्या हुआ? ट्रेस है ना. मैट्रिक्स की डायगोनल एंट्रीज क्या होंगी? A11 A22, सम कितना हो गया? ट्रेस. So this is trace of that matrix and this is determinant of that matrix. A11 A22 minus A21 A12, यही है ना? क्लियर है कि नहीं है? तो मैं इस इक्वेशन को लिख सकता हूं कैसे? सो दिस इक्वेशन बिकम्स इन द फॉर्म लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए, दिस इनटू लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए, दिस इज इक्वल टू 0. क्लियर और नॉट? दिस इज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फॉर ए 2 cross 2 स्क्वायर मैट्रिक्स. क्लियर और नॉट? सिमिलरली by this method we can define the characteristic equation for a 3 cross 3 square matrix. मैंने एक मैट्रिक्स डिफाइन किया, सपोज for कैपिटल A इक्वल टू Aij 3 cross 3. इस मैट्रिक्स के लिए अगर देखोगे तो क्या मिलेगी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन? द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज, बोलिए बेटा, सेम फॉर्म में कितना लिखे? लैम्डा क्यू माइनस ट्रेस ऑफ A प्लस दिस इनटू कितना आना चाहिए? लैम्डा स्क्वायर ना. कोएफिशिएंट यहाँ किसका? लैम्डा का. कितना लिख लिया यहाँ पे? लैम्डा स्क्वायर. फिर अगला कितना मिल गया? प्लस ट्रेस ऑफ एडजॉइंट ऑफ A, this into lambda minus last term is again determinant of the matrix capital A, this is equal to 0. Is it clear or not? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हम जस्ट जस्टिफाई कर रहे हैं किस कंसेप्ट को? यहाँ 2 cross 2 के लिए बोला था, आप क्या लेके चले गए? अब 3 cross 3. यहाँ ट्रेस है, अब बढ़ के क्या आ गया? ट्रेस एडजॉइंट है, और लास्ट टर्म कांस्टेंट कितना आएगा? हमेशा डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स. बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? एडजॉइंट कैसे आ रहा है थोड़ा इसे समझते हैं. अब आपके पास इक्वेशन बनती, मैंने जस्टिफाई किया इस कंसेप्ट को, मैं अभी बताता हूं आपको.
अगर मैट्रिक्स होती 3x3 ऑर्डर की तो उसके लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या बनता बताओ जरा. फॉर ए 3x3 ऑर्डर्ड मैट्रिक्स I define this characteristic equation in the form of A minus lambda into identity equal to 0. Its determinant for a 3x3 ordered matrix. क्या मिलता है अब? A11 minus lambda, A12, A21, अगला कितना आ गया? A21, sorry, this is A13. A21, A22 minus lambda, A23, and next is A31, A32, A33 minus lambda. डिटर्मिनेंट दिस इज इक्वल टू 0. समझना बेटा ऐसे क्लियर है. अब फिर से मैं डिटर्मिनेंट निकालता हूँ. अब मैं जब डिटर्मिनेंट निकालूंगा तो इक्वेशन मुझे फिर से इसी टाइप की मिलेगी जैसे यहाँ मिली थी, लैम्डा स्क्वायर माइनस दिस प्लस दिस एंड समथिंग. तो आप जब इसे सॉल्व करोगे तो इसके सॉल्यूशन में पहला टर्म तो ट्रेस ही मिलेगा, दूसरा टर्म क्या मिलेगा? ट्रेस ऑफ एडजॉइंट. तो दिस फॉर्मूला इज अराइज्ड फ्रॉम दिस मैट्रिक्स. कुछ और डिफरेंट नहीं है. जब आप इसी इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा? Clear or not? We get that equation. This is characteristic equation for a 3x3 square matrix. For 2x2 के लिए क्या बोला? Lambda square minus trace of a this into lambda plus determinant of a equal to 0. मैं और डिस्कस करता हूँ, पहले इतना लिखो. Matrix. This is capital A equal to Aij 3x3. We have to define its characteristic equation. Clear? So I write here the characteristic equation. This is in the form of determinant of A minus lambda into identity. This is equal to 0. समझ में आ रहा है सबको? Determinant of A minus lambda into identity equal to 0. This implies determinant of A11 minus lambda, A12, A13, similarly A21, A22 minus lambda, A23, A31, A32, A33 minus lambda, and its determinant is equal to 0. Clear or not? So now we have to find its determinant. This implies that कितना होगा? We multiply them. कितना मिला? This is A11 minus lambda into A22 minus lambda into A33 minus lambda. Similarly I write 3 का combination बना रहे हैं. समझ में आ रहा है? A12, A23, A31 plus A13, A32, A21, and similarly with negative sign we get A13, A22 minus lambda, A31, and next is minus A23, A32, A11 minus lambda, and the last one is here. This is minus, next term, last term is here. This is minus with A13, this minus कितना हो जाएगा? आपने टर्म लिए, एक तो ये मिला कॉम्बिनेशन एंड नेक्स्ट वन इज दिस एंड लास्ट वन इज दिस. दैट मीन्स A33 माइनस लैम्डा this into A21 A12. Is it clear or not? This is equal to 0. This is our determinant and determinant is equal to 0. ये लिख रहे हैं हम लोग. This implies that minus lambda into minus lambda into minus lambda, that means we get minus lambda cube plus. Now I define the coefficient of lambda square, minus lambda into A11. So we get here, this is lambda square into A11 plus A22 plus A33. Is it clear or not? Which is trace of the matrix. Clear or not? Next term नेगेटिव साइन के साथ में लैम्डा का कोएफिशिएंट देखना है आपको. यहाँ से क्या क्या मिल सकता है? A22 A11 इंटू माइनस लैम्डा. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इधर से कितना मिल सकता है बेटा? A22 A33, this is minus lambda. Similarly we define these three combination. So we get here A11 A22 plus A22 A33 plus A33 A11 and minus from here the coefficient of lambda. This is A13 A31 minus A13 A31 and next one is minus A23 A32 and minus A21 A12. Is it clear or not? This into कितना मिल गया आपको? Lambda. And the last term which is constant term, क्या क्या मिल रही है पहले से? A11 A22 A33. Is it clear or not? So I write plus A11 A22 A33 plus similarly here
This is A12, A23, A31, and next one is plus A13, A31, sorry 32, A21 with negative sign कितना मिल जाएगा यहाँ से A13, A22, A31 and this minus A23, A32, A11 and last term is here A33, A21, A12. This is equal to 0. Clear or not? अब इन सारी टर्म्स को देखें तो ये आपका जो फर्स्ट टर्म था ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे? This is trace of the matrix capital A. The second term, this is defined here. Clear or not? This term is here. This term represent trace of adjoint of A. Adjoint का मतलब क्या हुआ? कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स का ट्रांसपोज. आ रहा है कि नहीं आ रहा है? So trace of adjoint का मतलब क्या हुआ? डायगोनल के एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स का सम. यही क्या होगा? ट्रेस ऑफ एडजॉइंट. इस एलिमेंट का कोफैक्टर कितना मिलेगा? A22, A33 माइनस A32, A23. यही चीज मिल रही है ना यहाँ पे? A22, A33 माइनस A32, A23. Is it clear or not? Similarly, we can define the cofactor of this element and cofactor of this element. Their sum is trace of adjoint of A. So this term represent trace of adjoint of A, and that last term represent determinant of the matrix capital A. Is it clear or not? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? So from this equation we can write here, this implies we get by taking minus sign as a common, आपको कितना मिल गया? Lambda cube, this minus trace of A, this into lambda square, plus trace of adjoint of A, this into lambda. Is it clear or not? And the last term is minus determinant of the matrix capital A. This is equal to 0. Is it clear or not? समझ में आ रहा है? मैं रिकॉल करता हूं सारी चीजों को. देखो, फॉर ए 2x2 स्क्वायर मैट्रिक्स, capital A which is equal to Aij n cross 2x2, the characteristic equation is, this is lambda square minus trace of the matrix capital A, this into lambda plus determinant of the matrix capital A, this is equal to 0. Is it clear or not? This is our characteristic equation. मैंने दो रूट्स ले लिए किसके? इस characteristic equation के. कितनी डिग्री का इक्वेशन है? 2 डिग्री का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास कितने रूट्स होंगे? 2 रूट्स होंगे. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सो आई डिफाइन हियर, लेट lambda 1 comma lambda 2 are its 2 roots, and these roots are our eigenvalues of the matrix capital A. Clear or not? The roots of characteristic equation, they are eigenvalues of the matrix capital A. Then what is the sum of roots? This is minus b upon a for the quadratic equation. अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, दिस इज इक्वल टू 0, तो इसके अगर रूट्स हैं आपके लैम्डा 1 लैम्डा 2, तो सम ऑफ द रूट्स कितना होता है? माइनस b अपॉन ए. प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना होता है बेटा? c अपॉन ए. यही होता है ना? सो जस्ट आई डिफाइन दैट वैल्यू, सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स. करे डिफाइन, क्या मिलेगा बोलो? सो मैंने बोला lambda 1 and lambda 2 are its 2 eigen values या 2 roots of this matrix. Then we can define lambda 1 plus lambda 2. This is equal to minus trace of A, this divided by 1. That means we can the value is equal to trace of A. Is it clear or not? So this is trace of A. Is it clear or not? समझ में आ रहा है? That means trace of a matrix is sum of eigenvalues. Trace of a matrix is sum of eigenvalues. Trace of a matrix is sum of diagonal elements होता है, हम पढ़ते हैं इस चीज को. लेकिन किसी भी मैट्रिक्स के लिए अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका ट्रेस किसके इक्वल होगा? हमेशा सम ऑफ आइगन वैल्यूज. सिमिलरली आई डिफाइन प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2, कितना मिल गया? c अपॉन a, दैट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ a अपॉन 1. सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a, डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स कैपिटल A. बात समझ में आ रही है सबको? क्लियर और नॉट? सिमिलरली आई डिफाइन द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फॉर ए 3x3 स्क्वायर मैट्रिक्स. सो फॉर 3x3 स्क्वायर मैट्रिक्स,
capital A equal to Aij 3 cross 3, the characteristic equation is lambda cube minus trace of A into lambda square plus trace of adjoint of A this into lambda and minus determinant of A. Is it clear or not? Minus determinant of A, and this value is equal to 0. So क्यूबिक इक्वेशन है, कितने रूट्स मिलेंगे आपको? 3 रूट्स मिलेंगे. हमने एज्यूम कर लिया लेट लैम्डा 1, लैम्डा 2 एंड लैम्डा 3 आर आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स कैपिटल A. They are eigenvalues of matrix capital A. Then they satisfies the condition again. Lambda 1 plus lambda 2 plus lambda 3, sum of the roots minus of this upon this value. That means trace of it. Is it clear or not? So this is trace of it. Now sum of the roots taking 2 at a time. Sum of the roots taking 2 at a time. किस तरीके से आया? Lambda 1 lambda 2 plus lambda 2 lambda 3 plus lambda 3 lambda 1. ये 3 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं. दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? ट्रेस ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए दिस डिवाइडेड बाय 1. कितना वैल्यू मिल गया मुझे? ट्रेस ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए. समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर और नॉट? नेक्स्ट पॉसिबिलिटी इज, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? प्रोडक्ट. सो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 कितना मिल गया? दिस इज इक्वल टू minus determinant of A this divided by 1, coefficient of lambda cube. कितना हो गया? Determinant of. आ रहा है समझ में? This value is determinant of A. ये कैसे लिख रहा हूं मैं? थोड़ा सा समझ में आ रहा है आपको? अगर क्यूबिक इक्वेशन होती, कैसे मैंने ले लिया ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, सपोज दिस इज इक्वल टू 0. इज इट क्लियर और नॉट? सो फॉर दिस क्यूबिक इक्वेशन मेरे पास रूट्स होते कौन कौन से? लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3. तो सम ऑफ द रूट्स कितना होता है? लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3. दिस इज इक्वल टू माइनस b अपॉन a. क्लियर और नॉट? सम ऑफ द रूट्स टेकिंग 2 एट ए टाइम. लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 1 लैम्डा 3 लैम्डा 1. दिस इज इक्वल टू c अपॉन a. एंड लास्ट प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स. अब यही पॉसिबिलिटी बची ना? दिस इज इक्वल टू d अपॉन a. मेरी बात समझ में आ रही है सबको? क्लियर है कि नहीं है? सो सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू कितना मिला? माइनस b अपॉन a. सम ऑफ द रूट्स, हाँ, सम ऑफ द रूट्स टेकिंग 2 एट ए टाइम, दिस इज c अपॉन a. प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, दिस इज माइनस d अपॉन a. इज इट क्लियर और नॉट? समझ में आ रहा है कि नहीं? अल्टरनेट साइन के साथ चलता चला गया. अब यहाँ जो इक्वेशन थी ये भी क्यूबिक इक्वेशन है. सो वी यूज दैट प्रॉपर्टी, वी गेट सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ a. सम ऑफ द रूट्स टेकिंग 2 एट ए टाइम, दिस इज trace of adjoint of A, and the last product of the roots, this is determinant of A. So we get these 3 possibilities for these eigenvalues. Clear or not? आप इन तीनों equations को solve करके easily eigenvalues find कर सकते हो किसी matrix के लिए. Clear हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब देखो जरा, मैंने यही system define कर दिया एक n cross n order की matrix के लिए. मैंने कहा for capital A equal to Aij n cross n. For capital A equal to Aij n cross n. सब लोग समझना, sum of eigenvalues कितना होगा बेटा? This is equal to trace of the matrix capital A. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? This is equal to trace of the matrix capital A. n cross n ऑर्डर की मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का डिग्री कितना होगा? n. कितने रूट्स मिलेंगे? n. तो कितनी आइगन वैल्यूज मुझे मिली? n आइगन वैल्यूज. उनका सम किसके इक्वल होगा? हमेशा ट्रेस के इक्वल. उनका प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा? हमेशा डिटर्मिनेंट के इक्वल. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज, दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स कैपिटल ए. कोई डाउट यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? आई डिफाइन दिस प्रॉपर्टी, प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यूज, दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए. Product of the eigenvalues, this is determinant of A. So for a n cross n ordered matrix, again product of eigenvalues is determinant of A. Clear or not? तो अगर मैट्रिक्स सिंगुलर होगी तो क्या होगा? डिटर्मिनेंट 0 होगा. अगर मैट्रिक्स सिंगुलर होगी तो क्या होगा? डिटर्मिनेंट 0 होगा. और डिटर्मिनेंट 0 होगा तो किसके इक्वल है? प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज के इक्वल है. इसका मतलब 0 हमेशा उसकी एक आइगन वैल्यू होगी, तभी तो प्रोडक्ट 0 हो सकता है.
इन आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट जीरो कब हो सकता है? जब उनमें से कोई एक आइगन वैल्यू कैसा हो? जीरो हो। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? जब उनमें से कोई एक आइगन वैल्यू कैसा हो? जीरो हो। तो मैंने एक बात यहाँ पे लिखी कि लैम्डा इज इक्वल टू जीरो इज एन आइगन वैल्यू of the matrix capital A if and only if determinant of A is equal to 0. Lambda is equal to 0 is an eigenvalue of the matrix capital A if and only if determinant of A is equal to 0. कोई डाउट? क्लियर हो रहा है सबको? समझ में आ रहा है? तो मैंने कहा कि 0 हमेशा आइगन वैल्यू होगा मैट्रिक्स का अगर मैट्रिक्स सिंगुलर होगी। अगर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर भी तो क्या बोलोगे? उसकी कोई भी आइगन वैल्यू 0 नहीं हो सकती, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज किसके इक्वल है? डिटर्मिनेंट के इक्वल है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? लेट कैपिटल A दिस इज इक्वल टू Aij n क्रॉस n, दिस इज a स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, एंड वी हैव टू फाइंड इट्स आइगन वैल्यू। क्लियर और नॉट? मैंने कहा इफ रैंक ऑफ A, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स कैपिटल A दिस इज इक्वल टू R, देन वी कैन से द मैट्रिक्स कैपिटल A हैज n minus r, at least n minus r, n minus r zero eigenvalues, at least n minus r zero eigenvalues, मतलब कम से कम n minus r तो होंगी, इतना तो हम लोग श्योर है, बिकॉज रैंक कितना है? r, मतलब r इंडिपेंडेंट रोज और n minus r डिपेंडेंट रोज। तो जो n minus r डिपेंडेंट रोज थी उनके कॉरेस्पॉन्डिंग n minus r जीरो आइगनवैल्यूज तो मिल ही रही हैं। जो इंडिपेंडेंट रोज बच रही है हमारे पास, हो सकता है उनके कॉरेस्पॉन्डिंग भी आपको क्या मिल जाए? जीरो आइगन वैल्यू मिल जाए। मैं एक एग्जांपल लेता हूं इस बात को जस्टिफाई करने के लिए। मैंने मैट्रिक्स सपोज डिफाइन किया, दिस मैट्रिक्स कैपिटल A दिस इज इक्वल टू सपोज 0 1 0 0, दिस इज ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2। इज इट क्लियर और नॉट? व्हाट इज द रैंक ऑफ दैट मैट्रिक्स? दिस इज इक्वल टू 1। 1 रैंक आते ही क्या बोलोगे? एटलीस्ट बोलिए 2 minus 1 0 आइगन वैल्यूज। इज इट क्लियर और नॉट? एटलीस्ट 2 minus 1 0 आइगन वैल्यूज। इज इट क्लियर और नॉट? दिस इंप्लाइज दैट क्या हुआ कि कम से कम एक आइगन वैल्यू कितना होगा? 0 होगा। हम लोग श्योर हुए अपने कंसेप्ट के थ्रू कि कम से कम एक आइगन वैल्यू 0 होगा। लेकिन ये मैट्रिक्स कैसा है? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। कैसा है? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो या डायगोनल मैट्रिक्स हो, उसकी आइगन वैल्यूज हमेशा क्या होंगे? उसके डायगोनल के मेंबर्स। क्या होंगे? उसके डायगोनल के मेंबर्स। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? सो आई राइट दैट रिजल्ट फॉर ए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स and a diagonal matrix its eigenvalues are its diagonal elements। ठीक है ना? क्लियर और नॉट? जैसे मैट्रिक्स मेरे पास यहाँ पे है, दिस इज अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, देन व्हाट आर इट्स आइगन वैल्यूज? डायगोनल के मेंबर्स क्या क्या है आपके पास? 0। कितनी बार मिल गया 0 आइगन वैल्यू? 2 टाइम्स मिल गया। इसीलिए स्टेटमेंट में क्या बोला? कम से कम n माइनस r 0 होंगी, इतनी श्योरिटी हमारे पास है। उसके बाद आपको सर्च करना पड़ेगा, वो 0 भी हो सकती है और नॉन 0 भी हो सकती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सो मैंने यहाँ पे कहा बट इन दिस मैट्रिक्स कैपिटल A this is equal to 0 1 0 0, this is of order 2 cross 2, the diagonal entries both are 0. This implies we can say lambda equal to 0 comma 0 are its eigen values. Is it clear or not? Both eigen values are equal to 0. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दोनों की दोनों कैसी मिल गई आपको? 0 मिल गई। मैं एक एग्जांपल और लेता हूं। मैंने मैट्रिक्स लिया सपोज कैपिटल A दिस इज इक्वल टू Aij n क्रॉस n। कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है? n क्रॉस n ऑर्डर का मैट्रिक्स है। सपोज आपको गिवन किया है कि Aij दिस इज इक्वल टू I इंटू जे फॉर ऑल I एंड j, मतलब जो उसकी एंट्रीज है वो एंट्रीज किस फॉर्म में लिखी है? I इंटू जे फॉर एवरी I एंड j। तो अगर आप इस मैट्रिक्स को बनाओगे तो किस फॉर्म में मिलेगी बताओ? दिस A कैन बी रिटन एज दिस इज 1 इंटू 1
नेक्स्ट क्या मिल गया 1 into 2 and so on 1 into n. Similarly we can write 2 into 1, 2 into 2 and so on 2 into n. And the last row is here. This is n into 1, n into 2 and this is n into n. Is it clear or not? This is of order n cross n. कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है? n क्रॉस n ऑर्डर का मैट्रिक्स है. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहाँ पे रैंक कितना है बेटा मैट्रिक्स का? 1 है. बिकॉज the second row is twice multiple of first, third is thrice multiple of first, and last is nth multiple of first. Is it clear or not? So these all rows depends on the first row. That means the rank of that matrix capital A, this is equal to 1. Rank 1 मिलते ही क्या बोल दिया आपने? n minus 1 आइगन वैल्यूज कम से कम कितनी होंगी बेटा? 0 होंगी. n minus 1 आइगन वैल्यूज कम से कम कितनी होंगी? 0. So this implies that we can say matrix capital A has at least n minus 1 0 eigen values. Is it clear or not? अब रिमेनिंग जो एक बची उसे निकालना है आपको. आपको पता है सम ऑफ आइगन वैल्यूज किसके इक्वल होता है? सम ऑफ आइगन वैल्यूज किसके इक्वल होता है? ट्रेस के इक्वल होता है. वी नो दैट द ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स कैपिटल A, दिस इज इक्वल टू सम ऑफ आइगन वैल्यूज. इज इट क्लियर और नॉट? What is the trace of this matrix capital A here? 1 square plus 2 square and so on n square. यही मिल रहा है ना? So I write here this is 1 square plus 2 square plus and so on. This is n square. Is it clear or not? And this value is equal to कितना हो जाएगा बोलिए? Sum of eigen values. मेरे पास n minus 1 eigen value 0 है. कितनी 0 है? n minus 1. इतना हम लोग श्योर है. जो बचा आपका आइगन वैल्यू उसको कितना मान लिया? सपोज लैम्डा. जो रिमेनिंग आइगन वैल्यू से सपोज कितना मान लिया? लैम्डा. प्लस कितना ले लिया? लैम्डा. ठीक है. सो दिस इंप्लाइज दैट दिस लैम्डा इज इक्वल टू देयर सम. दिस सम इज इक्वल टू n into n plus 1, this into 2n plus 1, this divided by 6. Clear or not? So we can say here sum of the numbers 1 square plus 2 square and so on n square. This is equal to in this form. इतना आप जानते हो शायद. Sum of first n natural numbers, their squares. Clear or not? So we get that value. This is 0, 0, 0 and so on 0 for n minus 1 times. Clear or not? And what can you say? This n into n minus plus 1, this into 2n plus 1, this divided by 6. These are eigenvalues of the matrix capital A. Is it clear or not? These are eigenvalues of the matrix capital A. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है इतना? Values and eigenvectors. So the first property is corresponding to one eigenvector corresponding to one eigenvector. मैं eigenvalue से eigenvector पे नहीं चल रहा हूँ. मैंने क्या कहा? corresponding to one eigenvector. There exists one eigenvalue. Is it clear or not? There exists one eigenvalue. मतलब एक eigenvector किसके साथ एसोसिएट हो सकता है? सिंगल eigenvalue के लिए एसोसिएट हो सकता है. कैसे हो रहा है ऐसा? हमने डिफाइन किया. हमने बोला एज लेट लैम्डा 1 and lambda 2 are two eigenvalues of the matrix capital A. Suppose I define, ठीक है ना, and they are associated with a single eigenvector which is suppose non-zero x, ठीक है ना, with one eigenvector. I define this is x which is non-zero by the condition of eigenvalues. What can you say? This satisfies that condition Ax equal to lambda 1x, because lambda 1 is eigenvalue of that matrix and corresponding eigenvector is non-zero x. Clear or not? And the another equation is Ax equal to lambda 2x. Is it clear or not? So by these two equations, what can you say?
lambda 1x, this is equal to lambda 2x. Is it clear or not? And this condition implies lambda 1 minus lambda 2, this into x equal to 0. You know that your eigenvector is non-zero vector. कैसा वेक्टर होता है? Non-zero vector. So as this x is not equal to 0, so this implies that lambda 1 is equal to lambda 2. Is it clear or not? So an eigenvector can associate with single eigenvalue. It can never associate with two different eigenvalue. Clear or not? So corresponding to one eigenvector there exists exactly one eigenvalue. मेरी बात समझ में आ रही है सबको? सिर्फ एक आइगन वेक्टर के लिए हमेशा क्या मिलेगी? सिर्फ एक आइगन वैल्यू मिलेगी. पहली बात क्लियर हुई? दिस इज आवर फर्स्ट प्रॉपर्टी. सेकंड प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं. मैंने लिया सपोज इफ लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू, सब लोग समझना, इफ लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू of the matrix capital A which is of order suppose n cross n. So I discuss first term. Lambda square is an eigenvalue of the matrix capital A square. ऐसा क्यों कह रहे हैं हम लोग? आपको क्या दिया हुआ है? लैम्डा इज एन eigenvalue of A. इस कंडीशन ने क्या इंप्लाई किया? लैम्डा इज एन eigenvalue of A. क्या इंप्लाई कर रहा है? Ax equal to lambda into x. If I pre-multiply this equation by lambda or you can say A, क्या सिचुएशन बनेगी? थोड़ा बताओ सोच के. मैंने pre-multiply किया इस इक्वेशन को किससे? A से. Pre-multiplying by A by the matrix capital A. क्या हो जाएगा बेटा बोलो? A square x equal to lambda ax, where this ax is equal to lambda x, where this x equal to lambda x. So this equation implies a square x equal to lambda square x. क्या हुआ? बट यहाँ पे हमारा lambda square is an eigenvalue of. By using that concept, what can you say? Lambda to the power k for some k integer. This is an eigenvalue of a to the power k. Is it clear or not? I can define here the property. मैंने second property लिखी. Lambda to the power k is an eigenvalue of the matrix A to the power k. Is it clear or not? Lambda to the power k is an eigenvalue of the matrix A to the power k, where k is some positive integer. Is it clear or not? आप नेगेटिव भी ले सकते हो, कोई परेशानी नहीं. 1 upon a स्क्वायर का आइगन वैल्यू कितना हो गया? 1 upon लैम्डा स्क्वायर. मतलब a to the power -2 का आइगन वैल्यू कितना हुआ? 1 upon लैम्डा स्क्वायर. क्लियर और नॉट? वी कैन यूज दैट कंसेप्ट. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगेन देखो, दोबारा प्रॉपर्टी डिफाइन करता हूँ इसी चीज को देखते हुए. हमने फंक्शन बना लिया इन सब का. किसका? मैट्रिसेस का फंक्शन डिफाइन कर दिया. इस तरीके का फंक्शन लिया. समझना, मैंने कहा f ऑफ लैम्डा दिस इज इक्वल टू a नॉट लैम्डा प्लस a1 लैम्डा स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन an इंटू लैम्डा टू द पावर n इज एन eigenvalue of f of a. This is equal to a naught into identity plus a1 into a plus and so on a n into a to the power n. मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? आइडेंटिटी कैसा मैट्रिक्स है? डायगोनल मैट्रिक्स है. डायगोनल मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज क्या होती है? उसके डायगोनल के मेंबर्स होते हैं. होते कि नहीं होते? सो आइडेंटिटी की आइगन वैल्यू क्या होंगी? 1. डायगोनल एलिमेंट्स कितने सारे के सारे? 1. सो आइडेंटिटी की आइगन वैल्यू कितना मिला? 1. मेरे को यहाँ क्या लिखना चाहिए बोलो? 1. आ रहा है समझ में? a का आइगन वैल्यू कितना लिया है? लैम्डा. तो कितना होना चाहिए यहाँ पे? लैम्डा. इज इट क्लियर और नॉट? a स्क्वायर की क्या होगी अब? लैम्डा स्क्वायर. सिमिलरली e टू द पावर n की क्या होगी बेटा? लैम्डा टू द पावर n. सो आई राइट फंक्शन ऑफ लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ फंक्शन ऑफ a. Is it clear or not? Function of lambda is an eigenvalue of function of a. तो अब मैं ये बोल सकता हूँ इसी प्रॉपर्टी के थ्रू e to the power lambda log of lambda, e to the power lambda log of lambda, जो भी फंक्शन सोचना चाहो, sin of lambda, these are eigenvalues of, बोलिए किस किस के? e to the power a, log of a and sin of a respectively. Is it clear or not? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Because when you define their expansion,
एक्सपोनेंशियल का एक्सपेंशन करोगे क्या मिलेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन. सो अगर मैट्रिक्स की फॉर्म में करेंगे तो क्या मिलेगा आइडेंटिटी प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल जो भी फॉर्म बनता है. आइडेंटिटी की आइगन वैल्यू कितनी 1, ए की कितनी होगी लैम्डा, ए स्क्वायर की कितनी होगी लैम्डा स्क्वायर. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है. तो क्या डिफाइन कर रहा हो e टू द पावर लैम्डा. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ. सो आई डिफाइन e टू द पावर लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ e टू द पावर a. log lambda is eigen value of log a. sin lambda is eigen value of sin a. Similarly you can define for any function f of lambda is eigen value of f of a. Is it clear or not? बात समझ में आई सबको. कोई डाउट यहाँ तक. बात करें एडजॉइंट की. फिर एडजॉइंट की क्या आइगन वैल्यू होगी. देखो नेक्स्ट अगला कंसेप्ट है. देखो मैंने डिफाइन किया डिटर्मिनेंट ऑफ a अपॉन लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू of adjoint of A. Determinant of A upon lambda is an eigenvalue of adjoint of A. देखना सब लोग समझना. ये मैं इसलिए लिख रहा हूं अगर मैट्रिक्स A था उसका आइगन वैल्यू लैम्डा है. ये गिवन किया आपको. यहाँ पर क्या गिवन किया है लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स कैपिटल A. समझ में आ रहा है कि नहीं. सो मैंने कहा AX किसके इक्वल हो रहा है. ठीक है मैं एज्यूम कर लेता हूं लैम्डा 1 आइगन वैल्यू किसका एडजॉइंट ऑफ A का. ठीक है सो मैंने एज्यूम कर लिया. बोला लेट लैम्डा 1 इज एन आइगन वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए. इज इट क्लियर और नॉट. ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए. क्या कंडीशन सेटिस्फाई करेगा बोलो. एडजॉइंट ऑफ ए दिस इंटू एक्स इक्वल टू लैम्डा 1 इंटू एक्स. यही सेटिस्फाई करेगा. प्री मल्टीप्लाई करते हैं पूरी इक्वेशन को किससे ए से. ठीक है प्री मल्टीप्लाइंग बाई ए. ए से प्री मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा. दिस इक्वेशन इंप्लाइज ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए दिस इंटू एक्स इक्वल टू लैम्डा 1 इंटू ए एक्स. हुआ कि नहीं हुआ. एक्स किसके इक्वल है. किसके इक्वल है लैम्डा एक्स के इक्वल है. एट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल होता है. मैंने पढ़ाया था आपको. व्हाट इज द इक्वेशन. दिस इज ए इंटू adjoint of A, this is equal to determinant of A into identity. We know that this equation. Clear or not? So this is A into adjoint of A, this is equal to determinant of A into identity. रखे ना यहाँ पे कितना मिला. This is determinant of A into identity, this into x. This is equal to lambda 1 into Ax equal to lambda x. So this implies that we get determinant of A minus lambda 1 into lambda this into x. Because identity into x this is again x. किसी भी मैट्रिक्स के साथ में आइडेंटिटी का मल्टीप्लाई करोगे क्या मिलेगी सेम मैट्रिक्स मिलेगी. सो वी गेट x. क्लियर और नॉट. एंड दिस इज इक्वल टू 0. अगेन x कैसा है नॉन जीरो. क्यों नॉन जीरो. बिकॉज दिस इज एन आइगन वेक्टर. क्लियर और नॉट. सो फॉर नॉन जीरो x what can you say. This determinant of a minus lambda 1 into lambda this should be 0. Is it clear or not. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है. इस इक्वेशन ने क्या इंप्लाई किया बेटा lambda 1 is equal to determinant of a upon lambda. So this is eigen value of adjoint of the matrix capital A. Clear or not. कोई डाउट समझ में आ रहा है. तो मैंने क्या क्या चीजें बताई आपको. मैंने बोला किसी भी एक आइगन वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग. उल्टा बोल रहे हो. मैं बोल दूंगा मतलब सही हो जाएगा. किसी भी एक आइगन वेक्टर के कॉरेस्पॉन्डिंग एक आइगन वैल्यू मिलेगा. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है. मतलब एक आइगन वेक्टर सिर्फ एक आइगन वैल्यू के साथ एसोसिएट हो सकता है. वो दो डिफरेंट आइगन वैल्यूज के साथ एसोसिएट नहीं हो सकता. क्लियर. दूसरी बात क्या बोली. अगर मैट्रिक्स ए है स्क्वायर मैट्रिक्स है n क्रॉस n ऑर्डर का. लैम्डा उसका एक आइगन वैल्यू है तो ए स्क्वायर का आइगन वैल्यू क्या होगा लैम्डा स्क्वायर. ए क्यूब का क्या होगा लैम्डा क्यूब. सो वी कैन डिफाइन ए टू द पावर k उसका आइगन वैल्यू क्या होगा लैम्डा टू द पावर k. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ. नेक्स्ट आई डिफाइन एफ लैम्डा. मतलब कोई भी एक फंक्शन ले लिया मैट्रिक्स का इन द फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल. जैसे यहाँ सोच रहे थे ना तो पॉलिनोमियल की फॉर्म में फंक्शन है तो आइडेंटिटी का आइगन वैल्यू कितना 1. ए का कितना लैम्डा. ए स्क्वायर का लैम्डा स्क्वायर. ए टू द पावर n का कितना हुआ लैम्डा टू द पावर n. तो मैं इस पूरे फंक्शन की आइगन वैल्यू बता दूं ना. क्या लिखूं एफ लैम्डा ए नॉट इंटू 1 a1 इंटू लैम्डा एंड सो ऑन an इंटू लैम्डा टू द पावर n. दिस इज आइगन वैल्यू ऑफ एफ ऑफ ए फंक्शन ऑफ ए. क्लियर और नॉट. Similarly, we can define exponential, logarithmic, trigonometrical function.
सभी ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस के लिए हम आइगन वैल्यूज डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एडजॉइंट की बात करेंगे तो आइगन वैल्यू क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए अपॉन लैम्डा। लेकिन कब निकलेगा? जब डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो। अगर डिटर्मिनेंट जीरो हो गया तो सारी आइगन वैल्यूज कितनी हो गई? जीरो हो गई। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? लिखिए। So the first question is, this is A equal to 1 omega omega square। कैसी मैट्रिक्स है? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है ना? और जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो किस फॉर्म में है? 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। यू नो दैट 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर दे आर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। What property they satisfies? We know that if 1 omega omega square they are cube roots of unity, then this satisfies the property 1 plus omega square, this is equal to 0, as well as the second property omega cube is equal to 1. Is it clear or not? ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आपकी जो मैट्रिक्स है कैपिटल ए, वो कैसी मैट्रिक्स है? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं? उसके आइगन वैल्यूज। क्लियर है कि नहीं है? सो मैंने कहा कि 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर दे आर आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स कैपिटल ए। इज इट क्लियर और नॉट? सो दिस इंप्लाइज दैट 1 to the power 102 omega to the power 102 omega square, that means we can say 204, they are eigenvalues of a to the power 102. Is it clear or not? So trace of the matrix a to the power 102, this is equal to 1 plus omega to the power 102 plus omega to the power 204. लिख सकते हैं इतना? And you know that this value, it can be written as omega cube, this into 34 लिख सकते हैं ना? आ रहा है समझ में? This is equal to 102. And next one is omega cube, this into 68. Clear or not? आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में? Omega cube is equal to 1. So we get that value here, 1 plus 1 plus 1, this is equal to 3. Is it clear or not? 1 plus 1 plus 1 is equal to 3. So the trace of that matrix is equal to, कोई डाउट? क्लियर हुआ? समझ में आ रहा है? सिमिलरली दूसरे क्वेश्चन को देखो जरा, समझना क्या दिया है यहाँ पे। जो चीजें गिवन की है जस्ट उनको सोचते हुए चलो। क्या क्या दिया हुआ है? 2 आइगन वैल्यू दी है मैट्रिक्स ए की। कौन कौन सी है? 1 और 2। लेकिन ऑर्डर कितना है बेटा? 3 क्रॉस 3। कितनी आइगन वैल्यूज होनी चाहिए थी? 3 होनी चाहिए थी ना? तो आपको क्या क्या मिल रही है? 1 और 2 2 आइगन वैल्यू मिल रही है मैट्रिक्स ए की। हमने मान लिया सपोज थर्ड आइगन वैल्यू कितनी है? लैम्डा। We assume, suppose, let lambda be the remaining eigenvalue of the matrix capital A. Is it clear or not? You know that product of eigenvalues is determinant of the matrix. That means 1 into 2 into lambda, this should be equal to determinant of the matrix capital A, which is given here. This is 6. Clear or not? This implies that we can say lambda is equal to 3. So आपको 3 आइगन वैल्यूज मिल गई। कौन कौन सी? 1 into 2 into 3। ठीक है ना? So we can say this implies 1, 2 and 3 are eigenvalues of the matrix capital A. What is the trace of adjoint of capital A? Trace of adjoint of capital A याद होगा, पीछे मैंने पढ़ाया था। Sum of eigenvalues taking 2 at a time. Sum of eigenvalues taking 2 at a time. मतलब क्या किया? 1 into 2 plus 2 into 3 plus 3 into 1. कितना हुआ? 2 plus 6 plus 3. That means we can say 11. Is it clear or not? That means this first option is correct. दूसरा तरीका, इससे नहीं निकालना, नहीं आता है दिमाग में, तो ये भी तो पता है ना हमें। अगर ये तीनों आइगन वैल्यूज है मैट्रिक्स ए की, तो एडजॉइंट की क्या होंगी? Determinant of A upon lambda. Is it clear or not? So we can say determinant of A upon lambda is an eigenvalue of adjoint of A. पता है ना सबको इतना? So this implies that we can say 6 upon 1, 6 upon 2, 6 upon 3, they are eigenvalues
ऑफ एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स कैपिटल ए। कोई डाउट यहाँ तक? सबको समझ में आ रहा है? ट्रेस कितना हो जाएगा? निकल गया ना? ट्रेस ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, दिस इज इक्वल टू 6 plus 3 plus 2, that means 11. So we can say this first option is correct again. Clear or not? तो आप कोई भी दो अप्रोचेस ले सकते हो, दोनों के थ्रू आंसर